presentation cell will be taken by Dr. Sesh Jain. Dr. Sesh Jain will be teaching in traditional method with good concept. It will be not a PowerPoint or slide presentation because Dr. Shrest is comfortable in the traditional method of teaching. So bear with Dr. Shrest, and I guarantee you the teaching by Dr. Shrest is very conceptual, and he will explain everything very simply. And the audio quality may be little low and video quality may be little low, but it's good session. So let's start. What is to say? Say is the basis of life. Every disease has its mechanism. So once you propose cellular mechanism, cellular basis of the disease, हर डिजीज एक सेल से स्टार्ट होती है. जैसे कोई भी अल्जाइमर की होते हैं, ब्रेन के सेल्स डाई होने की वजह से होते हैं. कुछ सेल्स ब्रेन के डेड हो जाते हैं, इसलिए अल्जाइमर होता है. कोई भी डिजीज हो, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, पेनक्रियास के बीटा सेल्स डेड होने की वजह से होते हैं. हर डिजीज एक सेलुलर बेसिस है. Sir, not at all clear, sir. Sir, excuse me, it's not at all clear. Okay. The basis of life. वही हमारे सेल के हर प्रोटीन को बनने के लिए गाइड करता है और कैसे चलना है गाइड करता है. So how many base pair we have? We have 3.2 billion base pair. Billion means 10 to power. But this 3.2 billion base pair have only 1.5% of coding region. So do you think rest 98.5% of genes of DNA doesn't do anything? Is it non-functional? Non-functional? It's not like that. 80% of DNA, 80% of genome is functional. So what 80% rest, 80% to when 1.5% is only coding. What rest of the genome do? It regulates this coding. How this regulates the coding mechanism? First principle of regulation is promoter and enhancer region. Promoter, enhancer, and suppressor. Promoter, enhancer, and suppressor. Second is there are centromere and telomere. Centromere and telomere in our body, in our DNA. It also comes under functional genes because it is necessary in cell division and maintenance of DNA. Maintenance of DNA. It maintains telomere and centromere are necessary. Chromatin maintaining region. Chromatin maintaining region. Now we have transposon. What are transposons? Do anybody know what are transposons? See, DNA is not in its original place always. Some of its parts jump from one chromosome to another chromosome. This jumping gene, transposon, another name is jumping gene. It's called transposon, which goes from one DNA to another, but it's not permanent. If it's permanent, it's called translocation, not transposon. If it's permanent, it's called translocation. It is one of the basis of diseases. It is the basis of disease. So transposon, chromatin region, telomere, promoter, and suppressor region. These are some functions of non-coding regions of genes. So protein encoding region. Protein coding region is one gene codes for one protein. Its basic rules. Only one exception is there in gene ApoB48. The same gene codes two proteins, ApoB100 and ApoB48. Are you understanding everything? Is it understandable? Okay. So what is the biggest gene? Biggest gene is for a protein called dystrophin. Do anybody know what dystrophin?
is what occurs in mutation, loss of function mutation of dystrophin. There is a one very famous disease, X-linked recessive disease. Bovard sign is seen in this disease. Yes, it is ductal muscular dystrophy. It is proximal myopathy. Proximal muscles start degenerating at an earlier age. It's caused by the mutation of gene dystrophin. So, as monozygotic twins, all monozygotic twins are same DNA. So how they are different? Do their fingerprints are different too? Yes, their fingerprints are different too. So how fingerprints are different because of another reason in the genetic variation in monozygotic twins is the another reason. Fingerprints are different. Fingerprints are different due to there are rete ridges in dermal papillae. These rete ridges are formed differently in amnion and chorion due to influence of amnion and chorion. मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी है तो हर एक का एमनियन और कोरियन का इन्फ्लुएंस अलग अलग रहेगा, मैकेनिकल स्ट्रेसेस रहते हैं, उसके वजह से ये रेटे रीजन अलग अलग बनते हैं, इसके वजह से फिंगरप्रिंट्स अलग रहते हैं. बट जेनेटिक वेरिएशन मोनोजाइगोटिक ट्विंस के दो रीजन है. फर्स्ट रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रीजन ये है एपिजेनेटिक और सेकेंड है म्यूटेशन. म्यूटेशन जेनेटिक्स के लेसन में कैरी होगा, पर एपिजेनेटिक्स को डिटेल में देखेंगे इस लिहाज से. What is epigenetic? Epigenetic is any heritable changes which are caused due to non-DNA mechanism. DNA से नहीं जो ट्रेवल होता है heritable changes, not familial, heritable. It's called epigenetic. What is difference between familial and hereditary? See, some families have high fat diet, so obesity is in their family, not due to genetics, but due to their food, how they eat food. That's familiar. Some family they reside in particular region, so they have a particular disease in common due to that particular region, that particular geographical area. So that is not hereditary. That's familial. That's environmental induced familial diseases. So epigenetics is hereditary changes which are influenced by non-DNA mechanism. So what are these non-DNA mechanisms? So for this you have to understand histone. You all have read histones in our 11th and 12th classes. So ये हिस्टोन पे क्या, हिस्टोन का चार्ज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है. हिस्टोन को कौन सा चार्ज है? हिस्टोन है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. Every protein, most of the protein have negative charge. So histone have negative charge too. Histone has negative charge or positive charge. Histone has a positive charge. DNA has a negative charge. So histone and DNA are bound to each other. So what are these epigenetic changes are occur at the level of histone mainly. But there is one epigenetic changes which occurs at the level of DNA. So what are these epigenetic changes? That are histone methylation, acetylation, phosphorylation, ADP ribosylation, and SUMOylation. So methylation, remember this by MLA. Methylation occurs at lysine and arginine, amino acid of lysine. Acetylation is random. It can occur at any amino acid. Phosphorylation occurs at serine, amino acid of histone. So what is the importance of phosphorylation, acetylation, ADP ribosylation, and SUMOylation? ADP ribosylation means ADP is added by ribose sugar to histone. So methylation, what's important? It can cause transcriptional suppression or promotion. It can cause both.
मिथिलेशन का कोई ऐसा पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस नहीं है कि वो प्रमोशन ही करेगा या सप्रेशन ही करेगा, ये दोनों कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन, प्रमोशन एंड सप्रेशन। अब व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ एसिटिलेशन, समझ लो एक हिस्टोन में COO माइनस ग्रुप लग गया, तो हिस्टोन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा तो डीएनए जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज जो अट्रैक्टेड था वो अब अट्रैक्टेड रहेगा क्या? नहीं, अट्रैक्टेड नहीं रहेगा। इस वजह से डीएनए थोड़ा हिस्टोन से लूज हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होता है। तो एसिटिलेशन एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन, एसिटिलेशन एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन। what significance of phosphorylation? What significance of phosphorylation? Phosphorylation is important in centromere, DNA condensation, centromere and DNA condensation. अब DNA condensation में important है phosphorylation, तो कहाँ important होगा? ये मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रहता है। अब किसी ने पूछा मियोसिस मतलब स्पर्म और ओवम बनने के पहले फॉस्फोराइलेशन यानी एपिजेनेटिक्स का इंपॉर्टेंस है क्या? तो इंपॉर्टेंस है, तुम देखते हो कि मम्मी पापा का नेचर स्टूडेंट्स में अपने चिल्ड्रन में ट्रांसफर होता है, मम्मी पापा की हैबिट ट्रांसफर होती है, इसका रोल है फॉस्फोराइलेशन में। उसके बाद एडीपी राइबोसाइलेशन, एडीपी राइबोसाइलेशन का रोल है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। एडीपी राइबोसाइलेशन हैज द रोल इन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। एंड नाउ सुमाइलेशन, व्हाट इज सुमाइलेशन? सुमो, व्हाट इज सुमो? स्मॉल ubiquitin related modifier, small ubiquitin related modifier। अब स्मॉल यूबिक्विटिन रिलेटेड मॉडिफायर क्या है? ये प्रोटीन को डिग्रेड करता है, ये डायरेक्ट हिस्टोन को डिग्रेड कर देगा, डायरेक्ट हिस्टोन को ये डिग्रेड कर देगा। स्मॉल यूबिक्विटिन रिलेटेड मॉडिफायर ये डायरेक्टली हिस्टोन को डिग्रेड कर देगा। तो अपन ने 5 टाइप के देख लिए हैं, 5 टाइप के क्या क्या एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, पर ये एपिजेनेटिक चेंजेस होते कैसे, इनके पीछे मैकेनिज्म कैसा है एपिजेनेटिक चेंजेस के पीछे? What is the mechanism behind this epigenetic changes? तो सबसे पहले क्या होता है? क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस 3 टाइप के, राइटर, इरेजर, रीडर। राइटर क्रोमेटिन में चेंजेस लाते हैं, जैसे मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एडीपी राइबोसाइलेशन। इरेजर चेंजेस लाते हैं, जैसे जो एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, एडीपी राइबोसाइलेशन हो चुका है, एडीपी राइबोसाइलेशन हो चुका, उसको जो निकालेंगे, इरेज करेंगे, वो इरेजर है। तो रीडर का क्या काम है? रीडर का ये काम है कि अब राइटर है या इरेजर है ये कैसे पता चलेगा, इसलिए रीड करना पड़ेगा कि यहाँ पे मिथिलेटेड है, यहाँ पे एसिटाइलेटेड है, इसके लिए रीडर है। नाउ व्हाट आर मार्क्स? मार्क्स आर द पॉइंट ऑन डीएनए, जहाँ पे ये राइटर, इरेजर और रीडर पॉइंट ऑन डीएनए इन हिस्टोन, जहाँ पे राइटर, इरेजर और रीडर काम करेंगे। ये पर्टिकुलर साइट पे मिथिलेशन, एसिटाइलेशन और एडीपी राइबोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, सुमोइलेशन होता है। तो यह है बेसिक ऑफ एपिजेनेटिक चेंजेस, राइटर, इरेजर, रीडर। तो अब इस पे जैसे एक राइटर का एग्जाम्पल, इरेजर का एग्जाम्पल देखा, हिस्टोन डीएसिटाइलेज, HDAC। ये क्या करता है? हिस्टोन डीएसिटाइलेज क्या करता है? हिस्टोन डीएसिटाइलेशन, एज द नेम सजेस्ट, डीएसिटाइलेशन, एसिटिल ग्रुप CH3COO माइनस ग्रुप को निकालने का काम करता है। They are natural histone deacetylators. They are called serotins. Serotins are anti-aging molecule. ये हमारे बॉडी में नेचुरली होते हैं, शायद अनिल कपूर में कुछ ज्यादा ही है।
इसलिए वो एज नहीं कर रहा है स्लीडोटिन को। अब ना एचडीएसी इनहिबिटर भी होते हैं जो एचडीएसी इनहिबिटर को यूज करते हैं। some एचडीएसी ऐसे होते हैं कि जो कैंसर प्रमोट करते हैं, इसके लिए हम आर्टिफिशियल एचडीएसी इनहिबिटर यूज करते हैं जो पर्टिकुलर कैंसर को सप्रेस करे। जो कुछ एचडीएसी इनहिबिटर ऐसे होते हैं, जो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो एचडीएसी पे काम करते हैं, एचडीएसी डीएसआईलाइज करके एंटी कैंसर जीन को सप्रेस कर देता है। तो इसके लिए हम एचडीएसी इनहिबिटर यूज करते हैं। इनका नाम है पानीबिनोस्टैट, रोमिडेस्टिन। इसको याद कैसे करना, पानी बिना कैसे होगा, पानी बिना स्टैट में कैसे होगा, पानीबिनोस्टैट, रोमिडेस्टिन, रोमिडेस्को, ये दो तरीके से याद कर सकते हैं। ये जनरली कोलोन कैंसर के लिए ड्रग ऑफ ड्रग्स है, कोलोन कैंसर। उसके बाद जेनोमिक इम्प्रिंटिंग, व्हाट इज जेनोमिक इम्प्रिंटिंग? जेनोमिक इम्प्रिंटिंग सप्रेशन ऑफ राइटिंग रीजन, मतलब प्रोटीन कोडिंग रीजन by this epigenetic changes which causes some disease. Some diseases are Prader-Willi, Angelman, Fragile X। अब तुम सब सोचोगे कि फ्रैजाइल एक्स तो ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन के वजह से होता है। आपको वो जो ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन होता है वो प्रमोटर रीजन का मिथाइलेशन करके उसको सप्रेस करता है। तो फाइनली ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन से एपिजेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रैजाइल एक्स हो रहा है। तो ये था हमारा जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। हाँ, इस पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और एपिजेनेटिक चेंजेस विच आर हेरिटेबल, ये फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं या फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं? ये फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले चेंजेस। अब इस पे एक और मैंने बताया था कि डीएनए से भी, डायरेक्ट डीएनए पे भी एक जेनोमिक इम्प्रिंटिंग होती है। सबने डीएनए मिथाइलेशन सुना होगा, क्योंकि बैक्टीरिया में इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉम वायरसेस के लिए यूज होता है। दिस इज डीएनए मिथाइलेशन दैट ऑकर साइटोसिन रीजन ऑफ डीएनए, जहाँ पे सीडी आइलैंड आता है वहां पे डीएनए मिथाइलेशन होता है। ये वायरसेस के प्रोटेक्शन के लिए बैक्टीरिया में होते हैं, ह्यूमंस में भी थोड़े बहुत दिखाए गए हैं कि होते हैं करके। ये बेसिस ऑफ एपिजेनेटिक्स था। एपिजेनेटिक्स क्या है? हेरिटेबल चेंजेस है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल। एपिजेनेटिक्स आर हेरिटेबल चेंजेस इन द डीएनए। अब नाउ we will see about DROSA and DICER. DROSA, DICER, what is miRNA? First of all, what is miRNA? These are single-stranded small RNA. तो जब miRNA बनता है, डबल स्ट्रैंडेड बनता है डीएनए से निकल के, बनता सिंगल स्ट्रैंडेड है पर डबल स्ट्रैंड हो जाता है, एक में इसको ओवरलैप करके। फिर DROSA इसको प्रोसेस करता है न्यूक्लियस के अंदर, फिर न्यूक्लियस से बाहर आके ये LINC को ज्वाइन हो जाता है। LINC पे काम करता है डाइसर। ये सब जीन्स है। अब जैसे ये है, डाइसर क्या करेगा, यहाँ से ऐसा कट कर देगा, तो ये ऐसा डबल स्ट्रैंड ऐसा बन जाएगा miRNA। फिर ये RISC कॉम्प्लेक्स को जाके जुड़ता है, जिससे सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, और एक पर्टिकुलर mRNA को जाके जुड़ के उसका ट्रांसलेशन रोक देगा। This is post-translational suppression of protein synthesis by miRNA with the help of DROSA in the nucleus and DICER in the cytoplasm. And remember one name, RISC complex. These words are only important, इसी पे MCQ आएंगे, ज्यादा डिटेल में पूछते नहीं है इसके बारे में। अब Cas9 इस पे भी MCQ आते हैं, तो जिसके साथ में MCQ आपको उतना बताऊंगा। व्हाट इज CRISPR? क्लस्टर
intermittently space palindromic repeat. CRISPR. Cas9 is CRISPR associated protein 9. अब CRISPR Cas9 क्या करता है? इसका इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया में मिला था, पर इसको अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं। जैसे समझ लो एक वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, तो वायरस बैक्टीरिया क्या करता है, वायरस के कुछ डीएनए जीन्स का डीएनए वायरस का स्नैपशॉट ले लेता है, पर्टिकुलर जीन को सिंथेसाइज करके खुद के जीनोम में इंट्रोड्यूस कर देता है। फिर जब वो वायरस अगली बार इन्फेक्ट करता है, तो वही वाला जीनोम वापस ट्रांसलेट होगा और एक प्रोटीन बनेगा CRISPR। उसके साथ Cas9 एमआरएनए, वो एमआरएनए के साथ Cas9 एसोसिएटेड होगा, और वो एमआरएनए वायरस के डीएनए को, स्पेसिफिकली वायरस के डीएनए को इनिबिट करेगा। प्रोटीन के सिंथेसिस होता है, पर एमआरएनए और Cas9 का इंपॉर्टेंस है। These are CRISPR and Cas9 based. What is cellular housekeeping? What is cellular housekeeping? अब कुछ फंक्शन हर सेल में जरूरी होते हैं जो नॉर्मली होना चाहिए, जैसे प्रोटेक्शन है, एनर्जी सिंथेसिस है, मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज है, कुछ जैसे एंडोक्राइन से कंटिन्यूस सिक्रीशन होता है। ये कंटिन्यूस सिक्रीशन और कंटिन्यूस फंक्शन को बोलते हैं सेल्यूलर हाउसकीपिंग। यहाँ जगह होना चाहिए। अब सेल्यूलर हाउसकीपिंग के लिए हमारे बॉडी ने कंपार्टमेंटलाइजेशन का फैक्ट प्रोड्यूस किया। कंपार्टमेंटलाइजेशन का कंसेप्ट है, अब समझ लो, डिग्रेडिंग एंजाइम कहीं पे भी प्रेजेंट रहे तो खुद के सेल को ही डिग्रेड कर देंगे, या कोई सिंथेटिक एंजाइम कहीं प्रेजेंट रहे तो क्या सिंथेसिस कर पाएंगे। इसके लिए बॉडी ने हर चीज पे कंपार्टमेंटलाइजेशन किया। क्या कि जैसे लाइसोसोम में ही डिग्रेडिंग एंजाइम रहेंगे, आरबीआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसिस होगा। ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन किया हुआ है। अब डिग्रेडेशन का तीन इंपॉर्टेंट है। डिग्रेडेशन कहाँ का होता है? डिग्रेडेशन होता है प्रोटियोसोम, लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम, ये तीन चीजों में डिग्रेडेशन होता है। अब प्रोटियोसोम का इंपॉर्टेंस है, प्रोटियोसोम में यूबिक्विटिन का। यूबिक्विटिन क्या है? 76 अमीनो एसिड का प्रोटीन है। ये कोई भी इप्सिलॉन अमीनो एसिड ग्रुप ऑफ लाइसिन में ज्वाइन होता है। कोई भी प्रोटीन के इप्सिलॉन अमीनो एसिड ग्रुप ऑफ लाइसिन में ज्वाइन हो गया, ये इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसिन में ज्वाइन हो गया, 4 यूबिक्विटिन ज्वाइन हो गए, तो वो प्रोटीन प्रोटियोसोम में जाकर डिग्रेड हो जाता है। अब पर कब इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसिन को चाहिए? इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसिन पे जब ज्वाइन होता है, क्योंकि ये ग्रुप काफी अंदर रहता है। अगर 3D देखा तो बैरियर रहेगा ये ग्रुप तक पहुंचने के लिए, तो ये प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर एब्नॉर्मल रहेगा। प्रोटीन फोल्डिंग में प्रोटीन मिसफोल्डिंग यूबिक्विटिन अमीनो एसिड ग्रुप ऑफ लाइसिन ज्वाइन हो जाएगा, तो 4 यूबिक्विटिन ज्वाइन होंगे, जो कि 75 एसिड का प्रोटीन है, वो प्रोटियोसोम में जाकर डिग्रेड हो जाएगा। दिस इज अबाउट यूबिक्विटिन। अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के बारे में। उड़ जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबको पता है कि क्या रहता है, कि डुअल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड में इंपॉर्टेंट है फॉस्फोटिडिल, सीरीन। सीरीन जनरली अंदर के साइड में रहता है, ये सेल है, या आउटसाइड है, ये इनसाइड है, तो सीरीन अंदर रहता है। और जब ये सीरीन बाहर चलेगी आते हैं, ईट में सिग्नल बन जाता है, ये सेल को मैक्रोफेजेस आके खा लेता है, अपॉप्टोसिस टाइप का कुछ हो जाता है। फॉस्फोटिडिल सीरीन गिव ईट में सिग्नल, अपॉप्टोसिस बाय फास्ट लाइगेंड, ईट में सिग्नल। ये फॉस्फोटिडिल सीरीन का इंपॉर्टेंस। व्हाट इज फॉस्फोटिडिल आइनोसिटोन इंपॉर्टेंट? फॉस्फोटिडिल आइनोसिटोन IP3 DAG में इंपॉर्टेंट है फॉस्फोटिडिल आइनोसिटोन का, IP3 DAG पाथवे। ये ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के बारे में। एक और फॉस्फोलिपिड के बारे में बताऊंगा, लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट क्या होता है? एक लिपिड के रीजन होते हैं जो कि मोबाइल होते हैं। इसको कोई प्रोटीन आके जुड़ा तो ये अंदर सेल से लेके जाएंगे प्रोटीन, इसको बोलते हैं लिपिड राफ्ट। फिर ट्रांसपोर्ट,
सबसे पहले व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? सेल कोई भी चीज को अपटेक करेंगे तो एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। सेल कोई भी चीज को बाहर भेजेंगी तो अपने सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में उसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। ट्रांससाइटोसिस, सेल के थ्रू आर पार हो जाएंगी जो चीज को ट्रांससाइटोसिस बोलेंगे। व्हाट इज फिनोसाइटोसिस? फिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग। फिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग। अगर बहुत कम लिक्विड या कोई भी सेमी लिक्विड सेल अंदर लेके तो फिनोसाइटोसिस बोलेंगे। व्हाट इज फोटोसाइटोसिस? फोटोसाइटोसिस इज लाइक फिनोसाइटोसिस पर जनरली एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ट्रांससाइटोसिस के बाद एंडोसोम्स बनते हैं। फोटोसाइटोसिस में एंडोसोम्स नहीं बनते, डायरेक्ट सेल के साइटोप्लाज्म में सब कुछ रिलीज हो जाता है। व्हाट इज एम्पेरियोलाइसिस? एम्पेरियोलाइसिस इज वन सेल in the another cell without any cell eating, without any autophagy। ये हिपेटाइटिस में दिखता है, ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस में और जोजाइट डॉर्फमन डिजीज में दिखता है एम्पेरियोलाइसिस। एंड व्हाट इज एंटोसिस? एंटोसिस इज सेम सेल इनसाइड द सेम सेल, यानी एक ही टाइप का सेल उसी टाइप के सेल के अंदर रहता है, उसको एंटोसिस बोलते हैं। व्हाट इज अमाइलोसाइटोसिस? Amylocytosis is reverse of pinocytosis. Amylocytosis is reverse of pinocytosis. And what is this mechanism of all this? There are two mechanisms, caveolé and clathrin. There are two caveolé-based mechanisms, caveolé, clathrin-based mechanism. अब caveolé-based mechanism का importance, caveolé-based mechanism में caveolin प्रोटीन यूज होता है, क्लैथरिन में क्लैथरिन प्रोटीन यूज होता है। इसका नाम केव्स से आया है, केवियोले का नाम केव्स से आया है। तो ये बेसिक का ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके बाद साइटोस्केलेटन के बारे में देखेंगे। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। अब इनका डिफरेंस क्या है? एक्टिन 5 से 9 नैनोमीटर है, इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 नैनोमीटर है, माइक्रोट्यूब्यूल 25 नैनोमीटर का रहता है। एक्टिन के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा एक्टिन होता है जो कि ग्लोब्यूलर फॉर्म को होता है, इसको बोलते हैं जी एक्टिन। ये जी एक्टिन पॉलीमराइज होता है इनटू एफ एक्टिन। जी एक्टिन पॉलीमराइजेस इनटू एफ एक्टिन। अब एक्टिन का रोल क्या है? मसल में रोल है एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स में, और सेल मोबिलिटी में रोल है। जैसे सेल्स इधर से उधर जाते हैं, डायपेडेसिस करते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में क्या देखेंगे? इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 नैनोमीटर के जो प्रोटीन है, ये स्पेसिफिक होता है कुछ सेल के लिए, जैसे डेस्मीन है, मसल सेल में रहता है, इसलिए मसल सेल के कैंसर से रिलेटेड रहता है। मसल सेल के कैंसर का मार्कर है डेस्मीन। एनजीएपी, न्यूरल ग्लायल एसिडिक फाइब्रोप्रोटीन, ये न्यूरल कैंसर में रहता है, न्यूरल कैंसर में। ये एक्टिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल आर ऑलवेज एसोसिएटेड with microtubule associated protein. What are microtubule associated protein? This is mnemonic for microtubule associated protein. Kinesin, K for kinesin,
D for dynein। ये नर्व में काइनेसिन फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट के लिए और डायनिन रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए। डायनिन के म्यूटेशन से मिलर डिकर सिंड्रोम होता है। डायनिन इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम 17। डायनिन के म्यूटेशन से मिलर डिकर सिंड्रोम होता है, जो कि एक टाइप ऑफ लीजनसिफेली है। लीजनसिफेली, मिलर डिकर सिंड्रोम। फिर सेल ये हो गया साइटोस्केलेटन के बारे में। उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे, सेल टू सेल इंटरेक्शन। व्हाट इज टाइट जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन ऑल्सो नोन एज जोना ऑक्लूडन। ये टाइट जंक्शन ऐसा होता है कि इससे कुछ प्रोटीन पास नहीं होते, सेल बहुत सारे सेल्स का अपाइकल रीजन होते हैं। ये सेल के बीच में अगर यहाँ है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर ट्यूब है, ट्यूब्यूल, जैसे पीसीसी हो गया, डीसीसी हो गया, ये सेल में यहाँ पे टाइट जंक्शन है। तो यहाँ से जो भी मॉलिक्यूल आएगा वो यहाँ से जा नहीं पाएगा। ये टाइट जंक्शन का रोल है। तो टाइट जंक्शन के प्रोटीन क्या है? ऑक्लूडिन, क्लाउडिन, ऑक्लूडन मीन्स टाइट जंक्शन। द 4 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, ऑक्लूडिन, क्लाउडिन, जोन्यूलिन, कैटेनिन। ये 4 प्रोटीन्स के बाद अपन देखेंगे एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन क्या है? सेल टू सेल कनेक्शन के लिए या सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के कनेक्शन के लिए रहते हैं। इसमें रहते हैं इकेडेरिन। तो सबसे पहले डेस्मोसोम देखेंगे। इस पर डेस्मोसोम्स रहते हैं, बेल्ट डेस्मोसोम्स रहते हैं और फोकल अडेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो डेस्मोसोम, फोकल अडेशन कॉम्प्लेक्सेस इज अ पार्ट ऑफ इंट्रासेल्यूलर पार्ट ऑफ डेस्मोसोम। एक और है सेल्स टू एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स के लिए इंटीग्रिन। तो डेस्मोसोम में कैडेरिन जो प्रोटीन रहते हैं तो कैडेरिन बोलते हैं। कैडेरिन के 3 टाइप है, डेस्मोग्लिन, डेस्मोप्लेकिन, डेस्मोकोलिन। बेल्ट डेस्मोसोम में जो प्रोटीन है वो ई कैडेरिन है। अब फोकल अडेशन कॉम्प्लेक्स, फोकल एडिशन कॉम्प्लेक्स क्या, जैसे समझ, इसके डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फोकल एडिशन कॉम्प्लेक्स में एक क्वेश्चन रहता ही है, एम्स में आया था इस बार फोकल एडिशन कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन। जैसे ये सेल है, ये इसका डेस्मोसोम है, समझो डेस्मोग्लिन, इसके साथ कुछ प्रोटीन अटैच्ड है, ये न्यूक्लियस तक है। ये प्रोटीन को बोलते हैं फोकल एडिशन कॉम्प्लेक्स, जो कि डायरेक्ट न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस लाते हैं। कौन से चेंजेस लाते हैं? डायरेक्ट न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शनल चेंज लाते हैं। ये जो ट्रायंगुलर प्रोटीन बनाया है, ये फोकल एडिशन कॉम्प्लेक्स है। ये डेस्मोसोम के साथ कोई भी रिसेप्टर किसी के साथ भी अटैच रहेंगे तो सीधे ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस लेके आएंगे सेल्यूलर लेवल पे। तो फोकल एडिशन कॉम्प्लेक्स में 3 प्रोटीन है, सॉरी 3 प्रोटीन, विंक्यूलिन, अल्फा एक्टिनिन एंड जोन्यूलिन। जोन्यूलिन जरूरी नहीं है रहेगा ही कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये जोन्यूलिन इधर भी रहता है दोनों ऑक्लूडन्स पे। तो जोन्यूलिन बहुत रेयरली कभी कभी बस देखा गया है। तो विंक्यूलिन और अल्फा एक्टिनिन याद रखें। अल्फा एक्टिनिन के म्यूटेशन से डिजीज होती है जिसका नाम है निमनलिन मायोपैथी। निमनलिन मायोपैथी के 7 टाइप है, उसमें से एक टाइप अल्फा एक्टिनिन से होता है। 7 टाइप में एक टाइप अल्फा एक्टिनिन से होता है। निमनलिन मायोपैथी हम डिटेल में देखेंगे मायोपैथी के लेसन में, नर्व एंड मसल्स के लेसन। उसके बाद जो थर्ड है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन कहाँ होता है, गैप जंक्शन का रोल क्या है और गैप जंक्शन की म्यूटेशन से कौन सी डिजीज होती है, ये देखेंगे। उसके बाद गैप जंक्शन के बारे में सबसे पहले जो देखेंगे, गैप जंक्शन कौन से प्रोटीन से बनता है? कोनेक्सिन। 6 कोनेक्सिन मिलके गैप जंक्शन बनाते हैं, यानी 6 कोनेक्सिन एक कोन जैसे बनाएंगे, पीछे 3 आगे 3, उसके बीच में गैप जंक्शन रहेगा। और ये कोनेक्सिन क्या करते हैं, जैसे समझ लो सेल है, यहाँ से एक ऐसा कोनेक्सिन रहेगा ट्यूब के फॉर्म में। तो ये कोनेक्सिन
ये सेल के बीच की जगह भी कम करते हैं, सेल को पास में खींच के लाते हैं, दे पुल टू सेल्स टुगेदर so that the distance between two cells is only 20 नैनोमीटर। और ये गैप जंक्शन से आयन भी मूव हो सकते हैं। तो क्या है गैप जंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा इस आयन से मूव होने का? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कार्डियक मसल्स में, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कार्डियक मसल्स में कि जो एक एक्शन पोटेंशियल और सब मसल सब्सिक्वेंटली आएगा। स्मूथ मसल के पेरिस्टाल्सिस में इंपॉर्टेंस है। कोनेक्सिन गैप जंक्शन 20 नैनोमीटर। उसके बाद गैप जंक्शन के म्यूटेशन से कौन सी डिजीज होती है? गैप जंक्शन के म्यूटेशन से एक डिजीज होती है जिसका नाम है चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज। चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज ये गैप जंक्शन कोनेक्सिन के म्यूटेशन होती है, इसमें नर्व का डैमेजेस होना शुरू हो जाता है। चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज टाइप 1 इसमें होता है डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व। चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज टाइप 2 इसमें एक्सॉर्नल डैमेज। चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज टाइप 3 का इंपॉर्टेंस है बीजरिंग-टोटा सिंड्रोम। बीजरिंग-टोटा सिंड्रोम। चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज एक्स जो कि कोनेक्सिन के म्यूटेशन से CH32 के म्यूटेशन से दिखती है। इसमें होता है एक नर्व डेफनेस, एक नर्व इन्वॉल्व होती है इसमें। ये चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज है। फिर कोनेक्सिन के म्यूटेशन, कोनेक्सिन 26 के म्यूटेशन से एक और डिजीज होती है। कोनेक्सिन 26 के म्यूटेशन से डिजीज होती है, उसका नाम है बार्ट-पंफ्री सिंड्रोम। दिस वाज क्वेश्चन इन जिपमर। कोनेक्सिन 26 के म्यूटेशन से डिजीज होती है, उसका नाम है बार्ट-पंफ्री सिंड्रोम। ये गैप जंक्शन के बारे में हो गया। इस बार कोलेजन के बारे में और सिंटेकान के बारे में देखिए। कोलेजन क्या होते हैं? ये पॉलीमर है जो कि ट्रिपल हेलिक्स में रहता है। कोलेजन पॉलीमर है जो कि ट्रिपल हेलिक्स में रहता है। सबसे पहले जैसे प्रोकोलेजन बना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा एट लाइसिन एंड प्रोलिन रेसिड्यू। हाइड्रोक्सिलेशन एट लाइसिन एंड प्रोलिन रेसिड्यू इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली। फिर इसके बाद इसका ग्लाइकोसाइलेशन होगा इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फिर ये सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस से सेल के बाहर जाएगा। फिर इसके एंड को डिग्रेड किया जाता है पेप्टाइडेज से। फिर फाइनली इसमें कॉपर कंटेनिंग एंजाइम लाइसिल ऑक्सीडेज काम करता है और फाइनली इसको मैच्योर कोलेजन में बनाता है। तो इस पर डिजीज देखेंगे। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलिन के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से कोलेजन बराबर नहीं बन पाएगा और स्कर भी होगा। लाइऑक्सिलेशन बराबर नहीं होने से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। और लाइसिल ऑक्सीडेज जो कि कॉपर कंटेनिंग है, ये कम होने से मेनकेज डिजीज होती है। मेनकेज डिजीज ये पर्टिकुलर डिजीज के फीचर पर्टिकुलर लेसन में देखा जाएगा। ये मेनकेज डिजीज हो गए। कोलेजन के टाइप्स है। कोलेजन के टाइप क्वेश्चन में आता है, कौन सा कोलेजन कहाँ होता है ये क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले कोलेजन टाइप 1 आ रहा है ना, तो बोन BONE बोन 1, टेंडन 1, यहाँ पे 1 आता है तो कोलेजन टाइप 1 है। कोलेजन टाइप 2 इसको ऐसे लिखना, कार्टिलेज को कार्टूलेज लिखना, कार्टूलेज। तो कोलेजन टाइप 2 कार्टिलेजेस में इंक्लूडिंग हाइलिन कार्टिलेज। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है और कुछ बुक पे कंट्रोवर्सी भी, पर हाइलिन कार्टिलेज में भी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोग्लिन कोलेजन टाइप 2 है। कोलेजन टाइप 3 ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू में, कोलेजन टाइप 3 ग्रेन्युलेशन टिश्यू में रहता है। पर जब ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू का स्कार बनता है तो वो रिप्लेस हो जाता है कोलेजन टाइप 1 से। और स्कार में कोलेजन टाइप 3 और कोलेजन टाइप 1 का रेशियो जिपमर जून 2020 ये वाले जिपमर पूछा था, जो कि रेशियो होता है कोलेजन टाइप 3
का 1:6, कोलेजन टाइप 3 टाइप 1 का रेशियो 1:6 होता है। ये जिप्मर जून 2020 का क्वेश्चन है। उसका कोलेजन टाइप 4 ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहता है। फिर कोलेजन टाइप 7 ये डर्मल एपिडर्मल जंक्शन में। कोलेजन टाइप 9 ये फेसिस में रहता है, फेसिस। अब कोलेजन में एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप की कोलेजन फिब्रिलर है, कौन से टाइप के कोलेजन नॉन फिब्रिलर है। तो सिर्फ 4 कोलेजन फिब्रिलर है, 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5 ये 4 कोलेजन फिब्रिलर है। नो क्वेश्चन में यही पूछेंगे कि कोलेजन टाइप 4 और कोलेजन इन बेसमेंट मेम्ब्रेन फिब्रिलर और नॉट, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं, जैसे एम्स में आता है। तो कोलेजन टाइप 4 नॉन फिब्रिलर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, ये मार्क कर लो। उसका स्क्रीन देखा है, ये भी एक प्रोएक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स का रोल क्या है। जैसे ये सिंडेकान का मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। तो सिंडेकान के आजू बाजू एड्रॉप हो जाते हैं टीजीएफ बीटा, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, आई एम सॉरी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर बीटा, एफजीएफ बीटा। इसके वजह से एक कार में ग्रेन्युलेशन टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का सिंडेकान की वजह से कॉन्सेंट्रेशन होता है और वो अपने रिसेप्टर में अच्छे से काम कर पाता है। यह सिंडेकान का रोल, ये वाला प्रोटीन है सिंडेकान। अब ग्रोथ फैक्टर देखेंगे। ग्रोथ फैक्टर 7 टाइप के ग्रोथ फैक्टर है। लास्ट 2 मिनट्स ऑफ दिस लेक्चर ग्रोथ फैक्टर। तो सबसे पहले एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 2 टाइप के रिसेप्टर में एक्ट करता है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 1, रिसेप्टर 2। इसी रिसेप्टर में ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा भी एक्ट करता है। तो HER2 एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 का नाम HER2 भी है। HER2 न्यू रिसेप्टर ब्रेस्ट कैंसर में इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर में पढ़ेंगे। HER2 न्यू रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट भी होता है, हरसेप्टिन इज HER2 न्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है जो कि 2 टाइप के 1 और 2। उसकी यही रिसेप्टर में टिश्यू ग्रोथ फैक्टर अल्फा रहता है, एक्ट करता है। और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 का नाम भी है HER2, जिसका जो ब्रेस्ट कैंसर में इंपॉर्टेंट है, हरसेप्टिन का एंटागोनिस्ट। उसके बाद देखेंगे हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर। हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर ये कौन से रिसेप्टर में एक्ट करता है? ये मेट रिसेप्टर में एक्ट करता है। मेट मिथिल टायरोसिन, मेट रिसेप्टर। इसका इंपॉर्टेंस है रीनल पेपिलरी कार्सिनोमा में। रीनल पेपिलरी कार्सिनोमा में मेट का इंपॉर्टेंस है। थायराइड पेपिलरी कार्सिनोमा में मेट का इंपॉर्टेंस। हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर का दूसरा नाम है कैटर फैक्टर। दिस वाज क्वेश्चन इन एम्स। हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर का दूसरा नाम है कैटर फैक्टर। दिस वाज क्वेश्चन इन एम्स। फिर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF। इसके टाइप 3 टाइप है, PDGF AA, PDGF AB, PDGF BB। अब PDGF के रिसेप्टर है PDGF प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर अल्फा बीटा। अल्फा रिसेप्टर का इनहिबिटर का नाम है ओलारटुमेब। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसको याद कैसे रखना है? रट्टा मारना है। ओला ने रट्टा मारा, ओलारटुमेब, ओला ने रट्टा मारा। ये PDGF अल्फा का इनहिबिटर है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर अल्फा। उसके बाद दूसरा रिसेप्टर देखेंगे, दूसरा ग्रोथ फैक्टर देखेंगे VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये 4 टाइप के ABCD और इसकी ही सब फैमिली में एक ग्रोथ फैक्टर रहता है जिसका नाम है प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर। व्हाट इज द रोल ऑफ VEGF-A? VEGF-A का रोल है एंजियोजेनेसिस में, डायबिटीज मेलाइटस के एंजियोजेनेसिस में, रेटाइनोपैथीज में एंजियोजेनेसिस। व्हाट इज द रोल ऑफ VEGF-B और प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर? दोनों का सेम ही रोल है एम्ब्रियोजेनेसिस में।
व्हाट इज द रोल ऑफ VEGF C and D? ये लिम्फ एंजियोजेनेसिस में रोल है, जैसे नाम बोलता है लिम्फ एंजियोजेनेसिस, लिम्फेटिक्स और एंजियोजेनेसिस। लिम्फेटिक्स का भी रिप्रोडक्शन, मतलब लिम्फेटिक्स को भी बढ़ाता है और एंजियोजेनेसिस को भी बढ़ाता है। लिम्फ एंजियोजेनेसिस का रोल है VEGF का। VEGF का इनहिबिटर है रानिविजुमेब, बेवासिजुमेब। ये अभी याद नहीं किए तो चलेगा, ये ऑप्थेल्मोलॉजी का पार्ट है, रानिविजुमेब और बेवासिजुमेब। उसके बाद है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर दो टाइप है, अल्फा और बीटा। अल्फा मीन्स एसिडिक, बीटा मीन्स बेसिक। अब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर डाइमर के फॉर्म में रहता है कि अल्फा और बीटा हमेशा साथ में मिलते हैं, अल्फा और बीटा मिलकर डाइमराइज हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 7, कैरेटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर। कैरेटिनोसाइट सबको पता होगा, स्ट्रेटम जो स्किन की लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कैरेटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद है टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा। फैक्टर हो गए, आज के सब टॉपिक हो गए, आज का लेक्चर हो गया। किसी को भी कुछ डाउट है तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करिए, डॉक्टर श्रेष्ठ जैन नाम से हूं मैं, श्रेष्ठ जैन, इन एम्स फॉर पीजी ग्रुप, एम्स फॉर पीजी ग्रुप। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। Thank you, Dr. Seth. Thank you, Dr. Seth, for your very informative lecture. And it was traditional type, and it was very good and informative, and with all details you told. Thanks for the class. Welcome, sir. Going to the next session, so you can register for the next session. For next session, you visit m4p.com, then go to learn paid, then click on upcoming online class, and you can see on 5th there is a class by Dr. Pranit Koduru, and the topic is autostenosis. You can register for free, and all teachings